Good morning children, welcome to all once again. I am Mrs. Rani Sheikh from NCMS Chhabra. Today we are going to discuss our 5th chapter from 2nd semester. The name of your chapter, Dressing Up for Space. The theme of this chapter, Space. So in this chapter we will read and comprehend an article on a space suit. So first of all we will do warm up exercise. Have you ever seen the night sky? It is filled with many celestial bodies such as stars, moons, planets. How many celestial bodies do you know about? Work in pairs and match the names of each celestial body with its description. So children, here some name of celestial body and its description are given here. Match the name of each celestial body with its description. Celestial body. Which is celestial body? Asteroid, comet, meteor, meteorite and satellite. And its a description. What is its description? Let's see. A piece of rock or metal from outer space that has fallen to the earth's surface. So children, what is this? Yes, it is meteorite. Meteorite, a piece of rock or metal from outer space that has fallen to the earth's surface. Second, a celestial object made up of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Who is this? Yes, this is comet. Comet, a celestial object made up of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Third, an artificial body placed in orbit around the earth or moon or another planet to collect information or for communication. What is this? Yes, it is satellite. Satellite, an artificial body placed in orbit around the earth or moon or another planet to collect information or for communication. Next, a small rocky body orbiting the sun, large numbers of these ranging enormously in size. Enormously size means big size. Are found between the orbit of Mars and Jupiter. Who is this? Yes, it is asteroid. So what is the correct answer? First is asteroid. Asteroid, a small rocky body orbiting the sun, large number of these ranging enormously in size are found between the orbits of Mars and Jupiter. Next, a small body of matter from outer space that burns up when entering the Earth's atmosphere and appears as a streak of light in the night sky. Who is this? Yes, this is meteor. So children, here warm up section is done. So children, before start the lesson, I would like to introduce new words from the lesson. Space suit. It means a special suit worn astronaut in space. Bloated. It means full of liquid or gas and larger than normal. Visors. It means a pair of transparent movable shields attached to helmet to protect the eyes of or face. Intricate, detailed and implicated. Relieve oneself, it means to urinate or pass stool. Bulky, it means large and heavy. Modified, it means changed, slightly make them more suitable. Overall, it means a loose piece of clothing made of heavy cloth and worn over other clothes. Off the rack, it means made to a standard average size and not made specially to fit you.
Space is no doubt a difficult place to travel to and even more difficult to live in. First, there is no air in space. Then it is very cold unless the sun is shining directly at you. And since there is no air to protect you, the rays of the sun can burn you. So children, as we know that space is very difficult place, there is a travel and even more light. Why? Because there is no air in space. Then it is very cold. और वो जगह का कैसी है, ठंडी है. Unless the sun is shining directly at you, और जो सन की जो सन रेज है वो डायरेक्टली आपके सर पे होती है. एंड सिंस देर इज़ नो एयर टू प्रोटेक्ट यू, और आपको कोई एयर आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है. द रेज ऑफ द सन कैन बर्न यू, और उनकी सन की जो रेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आपको बर्न भी कर सकती है. टू सर्वाइव इन स्पेस, अ स्पेशल स्पेस सूट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी from the effects of the extreme heat and cold, and to provide you with air so that you can breathe. So children, अगर हमें स्पेस में सर्वाइव करना है तो हमें एक ऐसे स्पेस सूट की ज़रूरत है, ऐसे स्पेस सूट नीडेड है जो हमें प्रोटेक्ट करे एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से, और हमें वो प्रोवाइड करे प्रॉपर एयर so that we can breathe. Space suits are full of air to provide the pressure that your body is used to on earth. और स्पेस सूट हमें फुल एयर प्रोवाइड करती है, जितनी की हमको एयर अर्थ पे ज़रूरत होती है स्पेस सूट हमें वो प्रोवाइड करता है. सो दे लुक ब्लोटेड. ब्लोटेड मीन्स फुल ऑफ लिक्विड और गैस एंड लार्जर देन नॉर्मल. स्पेस सूट also protect you from space dust which travels faster than a bullet. So आपको स्पेस सूट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है स्पेस डस्ट से, जो कि क्या है, ट्रैवल करती है बुलेट से भी ज़्यादा फास्टर है. Its special gold line visors. Visors means a pair of transparent movable shields attached to helmet to protect the eyes of face. Protect your eyes from bright sunlight. You can see children, astronaut wear helmet which is protect her eyes, his eyes. Which is bright sunlight, जो कि उनको bright sunlight से बचाती है. A space suit is complete astronaut protection unit. What is space suit? एक complete astronaut protection unit है. A very intricate and well designed machine. Also ये एक बहुत ही well designed machine है. It has a heating and cooling system and arrangement for air in water to drink on the go. इसमें heating और cooling system लगा हुआ है, proper air है, water है जो हम ले सकते हैं. It even allows the astronaut to relieve himself while in the suit. और जब एस्ट्रोनॉट अपने सूट में होते हैं, अपने स्पेस सूट में होते हैं, तो वो हर काम कर सकते हैं. वो फ्रेश हो सकते हैं, वो ड्रिंक कर सकते हैं, वो एयर ले सकते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सूट्स. स्पेस सूट्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड अराउंड द 1930. सो आपको पता है बच्चों कि हमारा जो स्पेस सूट फर्स्ट इन्वेंटेड हुआ था 1930 में. As one goes higher up in the atmosphere, the air becomes thinner and pilots need air to breathe. जब एस्ट्रोनॉट एक बार हवा में ऊपर की ओर जाते हैं तो एयर बिकम्स थिनर, हवा हल्की हो जाती है, और जिसकी वजह से पायलट को मोर एयर की आवश्यकता होती है ब्रीथ के लिए. इन द बिगिनिंग द सूट्स वर समवॉट क्लमजी एज दे वर क्वाइट stiff. बल्कि मीन्स लार्ज एंड हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड इन. जो स्टार्टिंग के जो स्पेस सूट थे वो बहुत ही क्लमजी हुआ करते थे, बहुत हैवी होते थे, जिसमें इस एस्ट्रोनॉट को मूव करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती थी. द अर्लीस्ट astronauts stayed inside their spacecraft, but scientists soon realized that the astronauts would also be working in space. And so they started working on better space suits for this mission.
जब पहला जो द अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉट स्टेट इनसाइड देयर स्पेसक्राफ्ट, जब पहले के जो एस्ट्रोनॉट थे उनको वहाँ पर रहना पड़ता था इस स्पेसक्राफ्ट में, बट साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर काम करना स्पेस में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो उन्होंने एक नया स्पेस सूट के लिए मिशन रेडी किया। The first space suits were silver in color because scientists at that time felt that this would reflect the sun rays. So जो फर्स्ट स्पेस सूट था वो सिल्वर कलर का था। साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि वो जब सिल्वर कलर जब सन की रेज सिल्वर कलर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। They had pipes in them and that supplied air and water to keep the astronaut cool. So you can see इनके जो स्पेस सूट में है पाइप लगे हुए हैं that supplied air and water to keep the astronaut cool. Soon space mission required extravehicular activity, it means EVA, on the part the astronauts. That means the astronauts had to move out of the spacecraft to walk on the moon and later to repair the space shuttles while they are in orbit or orbit around the earth. The suits had to be changed. और जब इस extravehicular activity on the part of the astronauts, astronaut का पार्ट है, that means the astronauts had to move out. जब एस्ट्रोनॉट मूव करते हैं स्पेसक्राफ्ट के लिए, वॉक करने के लिए ऑन द मून पर चलने के लिए और रिपेयर करने के लिए, किसको रिपेयर करने के लिए? स्पेस शटल। वाइल दे आर इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द सूट्स हैड टू बी चेंज, और उनको रियलाइज हुआ कि सूट को चेंज करना है। दे वर अटैच्ड टू द स्पेसक्राफ्ट बाय अ थिक ट्यूब दैट कैरीड एयर एंड वाटर। अब उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट में थिक ट्यूब डाला जिसकी वजह से वो एयर और वाटर कैरी कर सकते थे एंड सपोर्ट देम फ्रॉम फ्लोटिंग अवे। यू कैन सी thick tube. During Apollo mission, the space suits were modified further. और during Apollo mission में modify किया space suit के लिए। They were big backpacks with air, water and batteries so that the astronauts could do a moonwalk. अब उन्होंने उनके बहुत बड़े सारे बैकपैक्स विथ एयर, क्या थे उसके अंदर? एयर, वाटर एंड बैटरीज लगी होती थी एस्ट्रोनॉट के पीछे, जिससे वो मून पर वॉक कर सकते थे अबाउट 8 आवर्स। द थिक ट्यूब्स वर रिमूव्ड। अब उन्होंने थिक ट्यूब्स को रिमूव कर दिया था। द एस्ट्रोनॉट्स हैड मोर फ्रीडम टू मूव अराउंड। ट्यूब को रिमूव करने के बाद एस्ट्रोनॉट मोर कंफर्टेबल हो गए हैं वहाँ पर मूव करने के लिए। Flying in space. A space suit attached to a rocket powered backpack is called a manned. अब स्पेस सूट में एक अटैच हुआ था रॉकेट पावर्ड बैकपैक जिसे हम कहते हैं मैन एवरिंग यूनिट। इट इज़ कॉल्ड MMU. इट हैज़ रॉकेट मोटर्स टू हेल्प द एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई। इस स्पेस सूट में रॉकेट की मोटर लगी होती है जिससे एस्ट्रोनॉट को फ्लाई करने में हेल्प होती थी अराउंड इन स्पेस, जो स्पेस के चारों ओर उसको फ्लाई करने के लिए ईजी होता था। देयर इज़ अ कैमरा इन द एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट। और इनके इनके हेलमेट्स में कैमराज लगे होते थे जिससे कि वो देख सकते थे। सो द अदर क्रू मेंबर्स एंड साइंटिस्ट ऑन अर्थ कैन मॉनिटर व्हाट द एस्ट्रोनॉट इज़ डूइंग। सो वहाँ पर जो क्रू मेंबर्स थे और जो साइंटिस्ट थे अर्थ पे बैठे हुए, वो लोग इजीली उनको वॉच कर सकते थे कि व्हाट द एस्ट्रोनॉट इज़ डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। मॉडर्न डे स्पेस सूट्स। मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉट्स डोंट नीड टू वियर स्पेस सूट्स एट ऑल। अब जो नया मॉडर्न डे स्पेस सूट जो बना है उसे ऑल टाइम एस्ट्रोनॉट को पहनने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन दे आर इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, जब वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर होते हैं, दे वेयर ओवरऑल्स, वो खुद के कपड़े पहन सकते हैं या लूज कपड़े पहन सकते हैं, और इवन देयर ओन क्लॉथ्स, अपने भी कपड़े पहन सकते हैं। दे वेयर स्पेशल वाइट स्पेस सूट ओनली व्हेन दे नीड टू गो आउट इनटू स्पेस टू डू रिपेयर वर्क और परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। सो वो क्या पहनते थे? दे वेयर स्पेशल वाइट स्पेस
वो स्पेशल वाइट स्पेस सूट पहनते थे जब उन्हें स्पेस में जाना होता था रिपेयर के लिए, या फिर अपनी कोई परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट करना हो तब वो वाइट कलर का सूट पहनते थे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेस सूट दिस डेज इज़ द ऑरेंज स्पेस सूट। और अभी जो न्यू जो बना है मॉडर्न डे स्पेस सूट, अब कॉमनली जो यूज़ करते हैं स्पेस सूट वो कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का है। इट इज़ वोर्न ओनली ड्यूरिंग लॉन्च एंड री एंट्री, और ये तभी पहनते थे या तो लॉन्च टाइम पे या री एंट्री के टाइम पे। द सूट हैज़ अ पैराशूट एंड अदर सर्वाइवल आइटम्स। इट इज़ ऑरेंज टू मेक इट ईजियर टू स्पॉट द क्रू। और ये ऑरेंज कलर का इसलिए है कि उनको ईजिली क्रू मेंबर्स स्पॉट कर सकें, देख सकें। Interesting facts. Initially, space suits were made to fit each astronaut, but now they are off the rack, ready-made. So जो पहले का जो स्पेस सूट था वो बहुत ही फिट होता था एस्ट्रोनॉट के ऊपर, वो बट नाउ चेंज किया है अब उन्होंने ऑफ द रेक अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन मेनी साइज। उन्होंने अब डिफरेंट पार्ट्स में और मेनी साइज में बनाया। दैट कैन बी अटैच एंड विल फिट एस्ट्रोनॉट ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब मेनी पार्ट्स में और मेनी साइज में बनाया है, जैसे एस्ट्रोनॉट को जिसकी हाइट और हेल्थ के अनुसार वो अटैच कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स कैन सेलेक्ट अ सूट, पैक देयर बैग्स एंड गो। अब एस्ट्रोनॉट आते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना सूट सिलेक्ट करते हैं, पैक करते हैं अपना बैग और चले जाते हैं। नाउ फ्यूचर स्पेस सूट्स। अब फ्यूचर स्पेस सूट्स कैसा होगा चिल्ड्रन? इन द फ्यूचर यू माइट बी एबल टू गो इनटू स्पेस फॉर अ हॉलीडे। अब फ्यूचर स्पेस सूट ऐसा होने वाला है कि हम उसे पहनकर हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं। साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग टू डिज़ाइन स्पेस सूट्स दैट विल बी स्मॉलर। अब साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं इसके लिए कि आने वाला जो फ्यूचर स्पेस सूट हो वो बहुत ही लाइट वेट हो, स्मॉलर हो और मोर कंफर्टेबल हो। दिस सूट्स विल बी बेटर फिटेड एंड मेड ऑफ फैब्रिक। और ये बहुत ही सुटेबल हो, फिटेड हो और कंफर्टेबल हो विथ लेस मेटल एंड रबर। मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट विल बी ईजियर। और उसे पहनकर चलने फिरने में ईजी हो। Space suits have 11 layers. So children, do you know how many layers in space suits? There are 11 layers. The layers are sewn and cemented together. They are about 4 inches thick. और जो space suit है वो कितने इंचेस है? 4 inches thick है, इतना मोटा है। It takes almost 2.5 years to produce a suit and it costs around $2 million. सो चिल्ड्रन, एक स्पेस सूट को बनाने के लिए कम से कम 2.5 ईयर का टाइम लगता है और इसे बनाने के लिए $2 मिलियन स्पेंड करनी पड़ती है। द स्पेस सूट इज़ टू हैवी फॉर ट्रेनिंग ऑन अर्थ। जब स्पेस सूट को पहनते हैं ट्रेनिंग के दौरान अर्थ पर, इट इज़ टू हैवी, बहुत भारी होता है वो। द एस्ट्रोनॉट्स यूज स्पेशल लाइट वेट पार्ट्स ऑन अर्थ एंड दे डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन वाटर। सो चिल्ड्रन, एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? उनके लिए यूज़ करते हैं स्पेशल लाइट वेट पार्ट्स ऑन अर्थ एंड दे डू, और वो बहुत सारी ट्रेनिंग के दौरान वो सारी एक्टिविटी कहाँ करते हैं? पानी के अंदर, इन द पूल। दे डू ऑल द थिंग्स दे विल डू ऑन देयर मिशन। जो भी मिशन में करना है वो अपनी सारी कहाँ करते हैं? इन द पूल, इन द वाटर। अ स्पेस सूट इज़ नॉट ईजी टू पुट ऑन। स्पेस सूट को पहनना ईजी नहीं है। It takes an astronaut over an hour to wear a space suit with the help of an assistant. इसे पहनने में कम से कम 1 आवर का टाइम लगता है और विद द हेल्प ऑफ एन असिस्टेंट, और एक असिस्टेंट की हेल्प की वजह से हम ये स्पेस सूट को वेयर कर सकते हैं। अंडर देयर हेलमेट्स एस्ट्रोनॉट्स वियर हैट कॉल्ड अ स्नोपी कैप। और चिल्ड्रन, जब ये एस्ट्रोनॉट क्या पहनते हैं? अंडर देयर हेलमेट्स के अंदर एक स्नोपी कैप होती है जिसमें माइक्रोफोन और स्पीकर्स लगे होते हैं, उनको वो वियर करना पड़ते। देन दे वेयर हेलमेट्स। सो एस्ट्रोनॉट्स कैन टॉक टू ईच अदर, जिसकी वजह से स्नोपी कैप में माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट कैन टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर सकते थे। अंडर द स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स वियर अनदर लाइट सूट।
बिफोर स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट ऑल्सो वियर लाइट वेट सूट, वो अपना एक लाइट सूट पहनते हैं, देन दे वियर स्पेस सूट. इट कवर्स देयर इंटायर बॉडी एक्सेप्ट देयर हेड, हैंड्स एंड फीट, और अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हैं हैंड और फीट को छोड़कर. देयर आर वाटर ट्यूब्स इन दिस लेयर टू कीप द एस्ट्रोनॉट कूल, और इसके अंदर ट्यूब्स लगे इन देयर आर वाटर ट्यूब्स इन दिस लेयर, इसके अंदर वाटर की ट्यूब्स लगी होती है जो एस्ट्रोनॉट को कूल बनाती है. So fact 5 here, National Aeronautic and Space Administration NASA is an American agency that works on space research projects. Apollo 11 was NASA's first space mission to land on the moon, and astronaut Neil Armstrong was the first human to step on the moon. On landing on the moon, Armstrong said, "That's one small step for a man, one night leap for mankind." Indian Space Research Organization, it means ISRO, headquartered in Bengaluru, is the Indian agency that works. Other than successfully launching satellites into orbit, ISRO has also launched Mangalyaan and Chandrayaan missions to Mars and the moon respectively. Science scale. So children, we cannot hear in space because there is no medium, therefore sound waves to travel. It takes an average of 8 minutes and 20 seconds for the light of the sun to reach Earth. So children, I hope you understood this lesson, space suit, dressing up for space suit, which astronaut needed in space. Thank you.